وٹ ایور آئی ٹولڈ یو یو پیپل ہیو ٹو امپلیمنٹ ان یور لائف. جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اس کے بغیر یہ آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی انسٹرکشنز, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. جو کچھ میں نے بتایا, جو کچھ ہم نے ڈسکس یہاں کی, میں حیران ہو جاتا ہوں. لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں کی بالکل مائنڈ سیٹ بچوں والی ہے, نہ پیرنٹس کے اندر شعور ہے کہ میرا بچہ آگے جا کر کیا کرے گا. بس ایف ایس سی کے بعد بیٹا ڈاکٹر بس ٹھیک ہے وہ کر لو آپ کی مرضی. پھر وہ بچہ پڑھتے نہیں. یار آپ اس کے ٹیلنٹ آپ چیک کر لیں. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹیلنٹ ویدر ہی از انٹرسٹنگ اور ناٹ, تب کام کرنا چاہیے. السلام علیکم, ہاؤ از ایوری بڈی, آئی ہوپ ایوری بڈی از فائن. اللہ ہے, یو سی واٹ اے گریٹ سلوگن. یس, آفٹر اے لانگ ٹائم. گزرا ہوا عید سب کو مبارک ہو. پٹھانوں کا عید تھوڑا لمبا ہوتا ہے, اور آپ لوگ کی روزے, تراویح, عبادات, ذکر, اذکار اللہ قبول کرے اپنے بارگاہ میں. اور یہ دیکھیں, یہ اللہ پاک کا ایک نظام, ایک سسٹم میں چل رہا ہے. دن ہو جاتا ہے, پھر رات ہو جاتا ہے, اسی میں عیدیں بھی گزر رہی ہے, لوگ مر جاتے ہیں, لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ اٹ از اے پارٹ آف لائف, یہ زندگی گزر رہی ہے, اور عیدیں آئے گی. لیکن ضرور ہر روز کچھ ایسا ضرور کیا کرو کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں. مرنا تو سب نے ایک دن, اگر آج جوانی ہے کل بڑھاپا بھی آ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. گاٹ اٹ. یس, ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ون آف دا انٹرسٹنگ ٹاپک. سو آج ایک ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. لوگوں نے بھی بہت کمنٹ کی. ناؤ آفٹر ایف ایس سی ایگزام دی پیپل آر فری. سو موسٹلی اسٹوڈنٹس فری ہوتے ہیں. ابھی ایف ایس سی کا ایگزام بھی ہونے والا ہے. ابھی لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایف ایس سی کے بعد میں کیا کروں. دے ڈونٹ نو وٹ شوڈ آئی ڈو, وچ فیلڈ شوڈ آئی آپٹ, کہ میں کون سا فیلڈ آپٹ کروں. آپ لوگ کی سجیشن بھی لیں گے. دیکھیں, میں نے خود دیکھا ہوا ہے. میں جب بچہ تو لوگ کہتے تھے یار میٹرک لیول میں پڑھائی نہیں ہے. یقین جانے جب میں 9th-10th میٹرک میں کہ پڑھائی زیادہ تھا. میں نے کہا وہ یہ تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پھر لوگوں نے کہا ایف ایس سی میں کالج لائف میں تو بالکل پڑھائی نہیں ہے. جب میں کالج لائف میں کہ یقین جانے پڑھائی دگنا تھی اگر لوگ پڑھنا چاہیں. پھر یونیورسٹی لائف میں لوگ کہہ رہے تھے یار وہاں تو آپ کی مرضی ہے, جو کرنا ہے, آنا ہے نہیں آنا ہے. سال کے لاسٹ میں جب چلا گیا, جب لوگ پڑھنے پر آ جاتے وہاں تو سب سے زیادہ پڑھائی تھی. تو مجھے سلولی اینڈ گریجولی آئی ریئلائزڈ دیٹ, مجھے یہ پتہ چلا یار لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں. لوگ وہ باتیں شیئر کرتے ہیں, حقیقت میں وہ خود وہی حرکتیں اس نے کیا ہوا ہوتا ہے. وہ خود نہیں پڑھتا ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار اس لائف میں کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ بات ہمیشہ, یہ میری ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ تھا. جب میں نے خود پریکٹیکل لائف میں چیزیں دیکھا تو یقین جانے یہ انسان کے اوپر مؤثر ہے کہ وہ کس طرح پڑھتا ہے. وہ جو بھی انوائرمنٹ ملتا ہے وہ اس انوائرمنٹ کو اویل کرتا ہے, یعنی یہ اس انسان اٹ از اپ ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ وہ اویل کرتا ہے یعنی. سو دس از واٹ ٹوڈے آئی ڈیسائیڈیڈ وی ول ٹاک اباؤٹ آفٹر ایف ایس سی. وٹ آئی مین وین پیپل گیٹ فری وٹ دے شوڈ ڈو, ان کو کیا کرنا چاہیے. تو آج اس کے اوپر بات کریں. وٹ ڈو یو تھنک احمد, از اٹ گڈ ٹاپک اور ناٹ؟ Yes, it's an important topic of youth generation after they cleared the FSC level. Sir, there are a lot of plethora types of issues we will discuss. بات کریں گے. محسن, sir, it is good topic. What do you think? Yes, sir, it is very fantastic. All of topic. them are agree, huh? yes. So okay. Now the question is اب بہت سے پیرنٹس یہ ویڈیو دیکھیں گے, بہت سے اسٹوڈنٹس سے دیکھیں گے. تو دیکھیے یہ ویڈیوز پوری نسل کے لیے ہیں. یہ تو گلوبل پلیٹ فارم ہے, یہ یوٹیوب, فیس بک, یہ اس سے کروڑوں اربوں لوگ دیکھیں گے ود دا پیسیج آف ٹائم. یہ پتہ ہے آج سے کچھ سالوں کے بعد بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے, لوگ دعائیں پھر ہمیں دیں گے کہ یار انہوں نے کیا زبردست باتیں شیئر کی. صرف اگر لوگ سیریس ہوں. ایک تو لوگ, میں حیران ہو جاتا ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں سارا دن فیس بک وہ پب جی کھیلتے رہتے ہیں موبائل میں.
वो अपनी ज़िंदगी में क्या तरक्की करेंगे। उनका तो मैं उनके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ। वो जुनैद जमशेद कहने ए अल्लाह मेरा दिल बदल दे, मैं कहता हूँ इनका दिल बदल जाए। लेकिन उनके पेरेंट्स की भी ख्वाहिशात होती है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, और बच्चे सारा दिन लोगों के ऊपर कमेंट करना या मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिटिसिज्म करना, नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होना, वो मड्डी ब्रेन जिसे हम कहते हैं। बट समहाउ यस, एक दफ़ा आप लोग की सजेशन लेता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, पर मैं अपनी वो भी सजेस्ट कर लेता हूँ जो पॉइंट्स हैं। यस, व्हाट डू यू थिंक, आफ्टर एफएससी के बाद अब देखिए जब रिज़ल्ट आउट हो जाते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं रिज़ल्ट आपके हाथ में, अब नाउ द पीपल आर इन डिलेमा, आप लोग परेशान हैं, यार ये रिज़ल्ट तो मिल गया, अब मैं आगे क्या करूं, यूनिवर्सिटी में तो जाना है, यूनिवर्सिटी में जाकर आगे मैं क्या करूं। पहले तो लोग सिंपल बीए कर लेता था प्राइवेट, या बीएससी 2 साल का, अब बीएस प्रोग्राम आ चुका है। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हुई, आज थोड़ा डीपली क्लियर कर लेते। तो बीए बीएससी होती थी, अब लोग देखिए ये बीएस प्रोफेशनल डिग्री है, अब लोग इसकी तरफ आ गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, मत क्या करना चाहिए एफएससी एग्ज़ाम के बाद, और आई मीन किस तरह वो अपना फील्ड को ऑप्ट करें, व्हाट डू यू थिंक। सर हंसते तो बहुत ही सर, अगर आप यानी कि आगे और पढ़ना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी लाइफ है, अगर इसके अलावा अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं साथ साथ पढ़ाई भी करूँ, अपना एक जॉब भी यानी कि करूँ, फिर ये अब एएसआई जैसे हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैट्रिक असिस्टेंट की जॉब हो सकती है, क्लर्क की जॉब हो सकती है। ये अच्छा सजेशन है। आजकल की महंगाई में अगर आपकी एक छोटी सी जॉब हो, 30-40,000 आपको सैलरी मिले, साथ साथ आप पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। आई मीन अगर अभी ऐसे भी लोग उनके पेरेंट्स बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। आगे पढ़ ले सर, क्योंकि अगर ये फील्ड, अब इशू ये है लोगों को फील्ड का पता नहीं है, फील्ड किस तरह वो लोग ऑप्ट करें, ये सवाल है। पोस्टों का सर नहीं, आई मीन एफएससी के बाद जब वो लोग बीएस करना चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग वो करें, डॉक्टर की फील्ड में चले जाएं, कार्डियोलॉजिस्ट बने या स्टेनो बने, क्या बने, सर मेरे क्रिकेटर बने, ये तो भी एक फील्ड है ना, आप इसमें जा रहे, फुटबॉलर बने। सर अगर उसके अंदर जो सा हुनर है, ऑनर एक ऑनर, और इसके यानी कि ख्वाहिशात, इसको सेट पकड़े, अगर इसके अंदर यानी कि अंदरूनी तालीम की तरफ से अगर इसका ख्वाहिशात है तो ये पहले उसको कब यानी कि पूरा करे। जैसे अगर ऑनर हो गया आपका, अगर आपको अभी ये कहना चाहिए मैं मेडिकल करना चाहता हूँ, अगर आपका थिंकिंग इंजीनियरिंग में, तो ये नहीं हो सकता है। अगर आपका जिस चीज़ में यानी कि दिल यानी कि चाह रहा है कि अब मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग करना, तो फिर आप इंजीनियरिंग में जाए। मगर मेरा ये सजेशन है कि आप कॉमर्स फील्ड ज्वाइन कर ले। मतलब आप कहना ये चाह रहे, देखें हर किसी की अपनी सोच है, आप किसी को कंपल नहीं कर सकते आप ये काम कर लें। अहमद, बेसिकली यू वांट टू से दैट कि आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं आप उसी की तरफ चले जाएं, ये आपकी सजेशन है। व्हाट डू यू थिंक यू। सर देखिए लोग एफएससी क्लियर कर लेते हैं, फिर एफएससी के बाद लोगों को ये पता नहीं होता कि आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लोग प्राइवेट दे देते हैं, फिर पोस्ट आ जाते हैं, फिर वाले साहब उसे कहते हैं कि आपने क्यों पास नहीं किया, बोलता है मेरा साथ नाजायज़ हो रहा है। वो लोग तैयारी करते ही नहीं है, एक्चुअली दे आर इनकॉम्पिटेंट। वो लोग बीएस का नाम पूरा नहीं जानते, वो लोग कॉलेज जाते नहीं, यूनिवर्सिटी जाते नहीं है, महीनों एक माह जाते हैं, तो फिर आखिर टाइम जाते हैं सिर्फ अपना डिग्री उठा लेते हैं, फिर पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, बोलते हैं बहुत मेरे साथ नाजायज़ हो रहा है। तो ये इस तरह की बच्चे ज़्यादा है, मेजोरिटी की अगर बात किया जाए। अभी देख क्लास में 50 बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, 10 काबिल होते हैं, 10 दरमियाना होते हैं, ज़्यादातर बिगड़े आपको नजर आएंगे। तो जुनैद, व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट फॉर दोज पीपल, आई मीन दे आर वेगाबॉन्ड, उन लोगों के लिए आप क्या सजेशन देंगे जो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, जिनका काम है टाइम ज़ाया करना, टाइम को उन्होंने हाथ पर उठाया हुआ है कि मैंने ज़ाया करना है। उस बेचारे को ये पता नहीं है द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज़ टाइम। दुनिया में सबसे महंगा तरीन चीज़ वक्त है। और ये गुजरा हुआ था, अगर लोग कहे मैं आपको अरबों रुपये दूंगा, दे दें, आप कभी नहीं लौटा सकते, गुजर गया। फ्यूचर में आप उल्टा हम टाइम के लिए हम सब्र करते हैं, हम नहीं बोलते 17 तारीख फिर मैं ये काम करूँगा, सब्र करना पड़ता है। तो आप वो बिगड़े हुए लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट। मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ
آپ لوگ اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ لوگ اس ٹائم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بعد میں یہی ابھی ایسے بھی لوگ ہیں نا, وہ انہوں نے تو ماں کا پیٹ میں نہیں سیکھے, وہ پیدا ہو جاتے, ماں باپ لاڈ پیار دے کر ان کو بگاڑ دیتے ہیں. تو اس میں کیا پیرنٹس کی آپ کہہ سکتے ہیں سجیشن, پیرنٹس کی گائیڈ لائن ہونا لازمی ہے یا نہیں ہے, آپ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں سر, اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے تو باہر کے لوگ اسے بگاڑ دیں گے. یہ نہ ہو کہ آپ اسے اتنا ڈیل دو, اتنا پیار محبت سے بات کرو, آپ نے اسے ہر چیز پر روکنا ہے. مطلب پیار محبت کرنا ہے لیکن شیر کا نظر رکھنا چاہیے. شیئر کریں, یہ نہ ہو کہ آپ اسے بیٹھا بیٹھا کہہ کر وہ کل آپ کا باپ بنے گا. آپ نے اسے اپنے آئی مین یو وانٹ ٹو سجیسٹ دیٹ کہ ٹھیک ہے پیار دینا چاہیے لیکن شیر کی نظر ہونا چاہیے اور پراپر گائیڈ کرنا چاہیے بچے کو. بہت سے پیرنٹس دیکھا ہے جو اپنے بچے سے اف کا بات بھی نہیں کر سکتے, بہت پیارے تھے اور اب وہ بڑے ہوئے وہی بیٹا اس کا باپ بنا ہے, گالیاں دیتے, بولتے میں آپ کو مار دوں گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو صحیح تربیت کی بات ہے, تربیت کا. آپ اتنا اسے اتنا وہ نہ دے, پیار محبت نہ دے کہ وہ بگڑ جائے, کل آپ سے بات نہ کر سکے. یس, تھینک یو فار یور سجیشن. یس, اسلام میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے 1 سال سے لے کر 7 سال تک اس کو یعنی کہ پیار دے دے ایک حد تک, اتنا بھی نہ دے کہ وہ آپ کا سر پہ چڑھ جائے. پھر 7 سے 10 سال تک پھر ہلکا ہلکا مار دے دے. اگر آپ وہ بھی نہیں کریں گے جیسے کہ جنید نے کہا, پھر بیٹا باپ بن جاتا ہے. You are absolutely right. 120% you are right. You see, as Ahmad mentioned the example, Junaid, you see, whatever you are doing in the world, دنیا میں اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہیں, ایک کام جب آپ کرنا چاہیں گے اس سے پہلے اس کو ضرور اسلام کے ساتھ لنک کریں. یار گویا یہ کام جو میں کر رہا ہوں کیا یہ میں صحیح کر رہا ہوں, اس کے نقصانات دیکھیں. اسلام نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا ہے, ایک ایک چیز کے بارے میں. تو کہنے کا الفاظ یہ, اب اسی ٹاپک کے اوپر میں آ رہا ہوں. سب سے پہلے آپ لوگ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. دیکھیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے, میں آپ کو بگننگ سے تھوڑا گائیڈ کر لیتا ہوں, آپ لوگ بھی غور سنیں. بچے کو کسی بھی چیز کی علم نہیں ہوتا. آئی مین دے ڈونٹ نو how to speak, even though they don't know they are my parents. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میرا والد صاحب, والدہ ہے, whatsoever. وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے. پھر پیرنٹس آتے ہیں, دیکھیے اس نے بولنا سیکھا, پھر ایسے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں مجھے, میں دیکھ کر میں حیران ہو جاتا ہوں, بچے کو گالی سکھا رہے تھے. دیکھ بچے نے گالی دیا ہنستے ہیں. براوی میں کیا بولتے ہیں آپ لوگ, کرن, وہ کیا بولتے ہیں, کرین تھی سنے تھے. اسی طرح براوی بہت مشکل ہے. اچھا وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے نا. پھر جب بڑے ہو جاتے تب گالی دیتے, پھر تھپڑ مارتے ہیں. کہ کیوں, وہ تو بچپن. دیکھیں بچوں کو پیار دیں اور وہ جائز خواہش آپ پورا کریں. اگر آپ پورا نہیں کریں گے یار وہ کس کے پاس چلے جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے 7 سال تک پیار لاڈ خوب دیں. اس کے بعد بچوں کو تھوڑا بہت گائیڈ کرنا شروع, بیٹا یہ کر لیں, بیٹا یہ برا بات ہے, بیٹا ہاتھ پیر دیں, یہ ایسے ایسے گائیڈ کرتے جائیں. اگر تب بھی آپ نے کہا کہ نہیں یار یہ تو چھوٹا ہے, 7 سال گزر بھی گیا, تو ابھی تک تو ہے, آپ نے ضرور گائیڈ. یہ میری باتیں آپ غور سے سنیں. ابھی جن سے وقت چلا گیا ہے وہ تو چلا گیا ہے, اب جن کے پاس یہ اپرچونٹی ہے وہ اس سے استفادہ اٹھائیں. اگر آپ 7 سال کے بعد بھی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے, 12 سال کے بعد اگر آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کہا, 12 سال کے بعد بلکہ آپ تھپڑ مار سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں خوب قسم کے, تب وہ بچہ آپ کا باپ بنے گا 12 سال کے بعد. دیکھیں ایک مثال میں, ایک درخت تو نہیں, ایک جب ہم بیج ڈالتے ہیں کسی اس پر زمین کے اوپر, فرٹائل زمین کے اوپر, تب وہ کیا ہوتا ہے جب اس کے جڑ نکل جاتے ہیں 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد آپ ایزیلی اس کو اکاڑ سکتے ہو, نکال سکتے ہو. ایون دو 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد کتنا بڑا ہوگا, اب 2 سال کے بعد آپ نکال کر دکھائیں, زور لگانا ہوگا آپ کو. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, ایک بچی کے اپنے پروپر پرورش کرنا ہے, اور 12 سال کے بعد پھر وہ آپ کا باپ بنے گا. دیکھیں وہ تو وقت کے ساتھ سٹرونگ ہوتا جائے گا. آپ نے اس کو اتنی ڈیل دی, اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ مضبوط ہو چکا ہے, وہ عادی ہو چکا ہے کہ اب میں نے کون میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو یہ میری سجیشن ہے. اب
ये बताने का मकसद यही है, अब मैं एफएससी के बाद ये चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। देखिए 5 साल से वो स्कूल जाता रहते। देखिए बचपन ही से, देखिए पेरेंट्स से बढ़कर मैं कहता हूँ बड़ा उस्ताद नहीं है। पेरेंट्स बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि यार मेरा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, इंजीनियर बनना चाहता है, या क्रिकेटर बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ यार एक और पठानों के ऊपर मैं हैरान हूँ। आप अगर कोई बच्चा कहे कि मैं क्रिकेटर बनूँगा, उसको थप्पड़ मार देते हैं। इस चीज़ का मैं खिलाफ हूँ, ये बहुत गलत कंसेप्शन है। देखिए यार ये तो बच्चा है यार, इसकी इंटरेस्ट है। हो सकता है ये दुनिया का ऐसा क्रिकेटर बने कि इसका सानी इस दुनिया में ना हो। बड़े बड़े नाम गुजर चुके, आपका तेंदुलकर हुआ, आजकल बाबर आजम है, इसी तरह विराट कोहली है। बड़े क्रिकेटर बनना है, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनो। ये गलियों में खेलना, ये ग्राउंडों में खेलना, ये फजूल है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जाए प्रोफेशनल किस्म का क्रिकेट खेले, बाहर जाए, प्रॉपर मेहनत करें, ऐसा क्रिकेटर बने कि आपका सानी इस दुनिया में ना हो। तो बात यह है कि आपने टैलेंट फाइंड आउट करना है। अब देखो बचपन से आप अपने बेटे को देख लो, 10 साल गुजर जाएंगे, क्या इसकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप स्लोली आप इमेजिन करते जाए, अगर इसकी इंटरेस्ट डॉक्टर फील्ड में है, आप जीसी मैट्रिक कर लेते हैं तो आप एफएससी फिर इंटरेस्ट फिर डॉक्टर फील्ड की तरफ। अगर आप कहते हैं नहीं यार बच्चे की इंटरेस्ट नहीं है, मैं देख रहा हूँ इसकी इंटरेस्ट नहीं है, आप गलत चीज़ों में भी इंटरेस्ट हो सकती है, उसे आपने गुरेज करना है। माँ बाप का क्या मतलब है, गाइड करना बच्चों को, बुरे कामों से रोकना। कह रहे बाप से बढ़कर हस्ती इस दुनिया में औलाद के लिए नहीं है। बाप हर किसी से लड़ता रहता है कि मैं ये चीज़ हासिल कर लूँ, लेकिन जब औलाद के सामने आ जाता है ना, बाप हार मान जाता है। कितनी बड़ी हस्ती है। कहता है कि मेरा औलाद मुझसे आगे बढ़ जाए। अब बाकी हर किसी से लड़ेगा, कहेगा ओ मैं आपसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू। लेकिन जब औलाद की बारी आ जाती, कहते नहीं यार मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा कुछ ऐसा करे कि दुनिया के लिए मिसाल बन सके। कितनी बड़ी हस्ती है। तो पेरेंट्स को बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइड करना चाहिए। गाइड करने के बाद जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, फुटबॉलर, क्रिकेटर, इवन दो बैडमिंटन, एजुकेशन फील्ड में व्हाटसोएवर, उसकी तरफ प्रॉपर गाइड करें। अगर गलत फील्ड, अभी एक वाकया मैंने आप लोग को सुनाया था, अगर आप लोग ने पिछली वीडियो, एक अंग्रेज़ का बेटा, तो उसका इंटरेस्ट बंदूक में ज़्यादा था। और दिन माँ बाप पेरेंट्स परेशान हुए, मेरे बच्चा तो बिगड़ जाएगी, इसकी इंटरेस्ट इसी में है, आगे तो इसकी क्या मुस्तकबिल होगी। तो हमारे यहाँ क्या करते, मारते हैं आपको, आप ये करेंगे, बच्चा और बिगड़ जाता है। तो उस पेरेंट्स ने क्या किया, बच्चे को ले बेटा, उसको एक फ़िल्म दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, बेटा अगर आप लोगों को ये बंदूक का शौक अगर आप करेंगे, एक दिन आप लोगों को मारोगे, मारने के बाद फिर आपको जेल होगी, फिर आपको फांसी होगी। बेटा समझ गया, अच्छा पापा ये इस तरह होगा। फिर उसने कहा पापा अब मैं नहीं बनूंगा, अब मुझे दूसरा फील्ड पता है। तो उसने प्रॉपर तरीके से बच्चे को गाइड कर दिया। हमारे यहाँ गाइड नहीं करते, हमारे यहाँ क्या करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, मुक्का मारते हैं, वो क्या बोलते हैं, बूट फेंकते हैं, उसके ऊपर जूते फेंकते हैं ना। ये गलत है। तो अगर गलत फील्ड बच्चे को गाइड कर ले, बेटा इट इज़ रॉन्ग, आप इसकी तरफ चले जाएं। तो फिर क्या हुआ, फिर वो बच्चे ने अपने फील्ड चेंज कर दी। तो इसी तरह आपने अपने बच्चे को देखना है। अब जो बच्चे एफएससी के बाद भी डिसाइड नहीं कर पाते कि आगे मैं क्या करूं, यार ये तो मैं पेरेंट्स को कसूरवार समझता हूं। ये पेरेंट्स के अंदर काम है। वो तो सारा दिन वो कहते हैं ना, पैसों कमानों में लगे होते हैं। ऐसे ऐसे भी घर हैं, वालिद साहब भी पैसे कमाते हैं, वालिदा भी सुबह निकल जाती, वालिद साहब भी बच्चों को छोड़ देते हैं। ये घर सिस्टम देखें, हमारे इस्लाम कहता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौल है कि एक औरत 4 दीवारी में प्यारी लगती है। मर्द का काम है बाहर जाना, कमा कर लाना। जब मेरी मंगनी हुई थी ना, उस टाइम मुझे भी कहा गया था कि आपकी घरवाली पढ़े आगे, अगर आप कहते हैं तो BS करना चाहते हैं। मैंने कहा नो दैट्स ऑल, FSC इज़ इनफ फॉर अस। क्यों? क्योंकि हमारी जो पठानों की जो ट्राइब है, जो कबीले, वो अलग हम पर्दों की ज़्यादा ख्याल करते हैं। इस चीज़ का हमारे अंदर है। तो अगर मैं भी निकलूँ पैसों कमाने के लिए, वो भी नहीं, तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, मेरी नस्ल बिगड़ जाएगी।
माँ किसे कहती है? माँ का काम है घर को संभालना। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है अभी, ये अगर एक औरत डॉक्टर हो, अगर डॉक्टर नहीं बनेगी तो औरतों को कौन चेक करेगा? ये अल्लाह ने सिस्टम बनाया हुआ है, ये पंजाबियों में से उठेगा, अंग्रेज़ों में से उठेगा। अल्लाह ने सिस्टम को रोकना नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या कहते हो शहजादे? इसी तरह है। तो ये कहने का अल्फाज ये हैं कि हर किसी की अपनी परसेप्शन होती है। तो एफएससी के बाद अगर अब भी ऐसे बच्चे जिनको गाइड नहीं किया गया अभी भी परेशान है, तो ये पॉइंट्स अभी आपके लिए हैं। आप लोग एफएससी के बाद ऐसा कर लें, अब आप देख लें यार आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपकी इंटरेस्ट अभी भी बिजनेस में है, अगर आप कहते हैं यार मैं खुद कोई काम करना चाहता हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिलीव मी, गो फॉर द बिजनेस। पेरेंट्स की बात ना सुने, लोगों की बात ना सुने, निकले बिजनेस के लिए। चाहे आप किसी के साथ काम ही क्यों ना करें, वो कोई बात नहीं, वक्त के साथ आपकी बड़ी बिजनेस रहेगी। माइंड सेट बनाए, लोग यूट्यूब में सर्च करें हाउ टू ग्रो माई बिजनेस, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। अल्लाह ताला ने आपको यूनिक बनाया। अगर आप कहते हैं नो यार मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फला फील्ड में इंटरेस्ट रखना चाहता हूँ, उसी की तरफ जाएं। बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इंटरेस्ट यू, इट इज़ अप टू यू। मुझे तो नहीं पता है अभी आपके अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट हो उस फील्ड से आपको सख्त नफरत हो। समझ आ रही बात? अभी भी टाइम है, इट इज द टाइम यू हैव टू डिसाइड इट वेदर वेयर शुड यू गो। समझ आ रही मेरी बात? ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये आप चले जाएं हमारे यहाँ, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं जो जिनकी वजह से लिटरेसी रेट हमारी जो लिटरेसी रेट जो बताती है, ऐसे ऐसे भी बिग क्रोकोडाइल्स है, लेकिन मैं अफसोस है कि मुझे कहना पड़े वो लोग अभी तक बुक के कीड़े बने हुए हैं। ये बुकों से निकलो, बुक के अंदर कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर द एग्ज़ाम, इट इज़ जस्ट रिलेटेड फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम अब तक पढ़ो ज़्यादा डीपली। अब आपने देखा होगा ऐसे भी लोग हैं कि वो पढ़ते रहते हैं ना, लेकिन वो जब बाहर जाते हैं वो नहीं बोलते बुक का कीड़ा, तो वो जब बाहर आता है उसको बात करना नहीं होता, घबरा रहा होता है, क्योंकि उसने सारा दिन कमरे में गुजारा होता है। सोशल बने। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप कहें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे। अगर देखो उसके लिए प्रॉपर सिलेबस होता है, जो किताबी रिक्वायरमेंट है वो आप पढ़ें। मैं ऐसे लोग उसकी बातें कर रहा हूँ। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ये पढ़ें। आप बुक का कीड़ा किसको कहते हैं? जो फजूल किताबें पढ़ने लग जाते हैं। उससे अच्छा आप कुरान पढ़ लो। अंग्रेजों की पता नहीं कौन सा किताबें पढ़ रहे हैं। कुछ बुक्स हैं नो डाउट, बड़े ज़बरदस्त मॉरल स्टोरीज हैं उनमें, वो ठीक है किसी हद तक। वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आई होप इट इज़ क्लियर जो कुछ मैंने कहा कि एफएससी के बाद ये आपके ऊपर मुअस्सर, आप क्या करना चाहते हैं। आप 3 सवाल अपने आप से कर लें, यार ये फील्ड जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे इंटरेस्ट है, यानी अगर कोई और भी आपको सजेस्ट करे बेटा आप ये कर लो, आप अपने आप सवाल कर रहे हैं यार मुझे इंटरेस्ट है या नहीं है। दूसरा, मैं ये क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा इस फील्ड से। तीसरा, इसको करने के बाद क्या मैं इसको एंजॉय कर सकूंगा या नहीं। देखिए एक एक करना, एक चीज आप डिसाइड कर लेते हैं, बाद में हो सकता है आप उससे बोर हो रहे हो। हर चीज को देखना है लाइफ में। गॉट इट? इज इट क्लियर? तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी तो वी आर लर्निंग फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सीखते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो लोगों को ज़्यादा समझ आएगी बनिस्बत है कि आप किताबों में जो लिखा हुआ है, जो रटा आप जो कहें वो नहीं। थैंक यू।
और इंशाल्लाह ज़िंदगी होगी मुलाकात। चलो ये बाकी बच्चों को भी पढ़ाते हैं। थैंक यू, दैट वाज ग्रेट कन्वर्सेशन। ये वीडियो आप लोग आगे शेयर करें, किसी और को भी फ़ायदा होगा। ठीक है बेटा, बैठ जाए। आप दोनों आए शहजादो, कंटिन्यू द वीडियो जुनैद। और ही बेटा फाइन, बैठ जाएं। Yes, you both of you start conversation, please. Hi, how are you? I'm fine. What about you? I'm also fine. You look very healthy. Happy and very extraordinary. What do you want to become? I want to become a doctor. Why you want to become a doctor? Why you want to become a doctor? Because I help poor people. ये एपिसोड्स में अपलोड करो, मेरे ख्याल से अभी 7-8 एपिसोड्स तक चला है, तो आप लोग आगे भी देख सकते हैं। पूरा ग्रामर सीरीज, बहुत से लोग गांव में रहते वो आ नहीं सकते हैं, फीस का इशू होता है, बहुत ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग वो देख सकते हैं। जमाल कैन प्ले क्रिकेट, कैन जमाल जमा कैन नॉट, कैन जमाल नॉट। शाबाश बेटा। ये क्या है? शाइस्ता कैन राइट अ लेटर, कैन शाइस्ता राइट अ, शाइस्ता कैन नॉट, कैन शाइस्ता नॉट राइट अ लेटर। इमरान कैन इम्प्रूव इंग्लिश, कैन इमरान, इमरान कैन नॉट, कैन इमरान नॉट इम्प्रूव इंग्लिश। शाबाश बेटा, ये जुमले आपने खुद बनाए? Yes, sir. शाबाश बेटा। डेट क्या है आज? 3 मई है बेटा, 2023। गेट स्टार एंड गुड। आप ले आए। ये तो बहुत टफ जॉब है, पता है, इंडिविजुअली पढ़ाना, एक एक दो दो को पढ़ाना, क्योंकि मेरा ये मानना है, किसी के अपनी सोचों में बहुत सी अकेडमियों में पता नहीं इन्होंने 50-50 बिठाए हुए होते, पढ़ा रहे होते हैं। और मैं बोलता हूँ यार, किसी की अपनी माइंड, हर किसी की अपनी सोच है। अभी बात को समझ आ रहे होते, बात को जल्दी समझ आ जाता है, बात को लेट समझ आ जाता है। लेकिन मैं इस वजह से अभी देखिए, यार किसी की अपनी माइंड सेट है, मैं यार किसी को अलग पढ़ाता हूँ, चाहे जितने भी हो। सुबह बैठ जाता हूँ, रात, तो इससे क्या होगा, हर एक को चीज़ें क्लियर होगा। ये चीज़ें ये आपने क्या लिखा है शहजादे? मैंने इमरान इधर लिखा, आपने यू लिखा है। इमरान, इमरान कैन टेक इंग्लिश, क्या बोल रही है? इमरान कैन इम्प्रूव इंग्लिश। इमरान इंग्लिश उठा सकता है, ले सकते हैं। थोड़ा सही कर लो, आपको लटकाना है एज सुन एज पॉसिबल। यू विल हैंग दियर, ओके? वहाँ देख रहे हो, ये स्पेशल आपके लिए है, देख लो बेटा। लास्ट टाइम आई टॉट कैन, व्हाट आई टॉट? कैन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गुड। गुड किसे कहते हैं बेटा? पास्ट एबिलिटी। व्हाट? Past ability. For past ability we use could. Could नहीं पढ़ते हैं, L is silent, okay? Could. Past ability मतलब past में कोई सलाहियती काम करें। For example, जमाल क्रिकेट खेल सकता था, अब नहीं खेल सकते, अब बेचारे की टांगे टूट गए। सकता था, सकती थी, सकते थे, या बूढ़ा हो गया, ठीक है। कोई भी एक्टिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले बेटा क्या आएगा? सब्जेक्ट। सेकेंडली हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? गुड। थर्डली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। फोर्थली क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और क्या आएगा? एडवर्ब। मैं कहता हूँ अकरम खत लिख सकता था, अब नहीं लिख सकता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब बताएं। अब अकरम could write a letter. Interrogative, could Akram could Akram write a letter? Negative, Akram could not
Akram could not write a letter. Anti-negative, could Akram not? Could Akram not write a letter. Anti-negative, could Akram not write a letter? अब बताएं बेटा, वो बिरयानी पका सकती थी. यस, सकती थी. बताएं. She could cook food. Food. She could cook food. She could cook food. Interrogative, could she Could she cook food? Negative, she could not. She could not cook food. Interrogative, could she not Could she not cook food? cook food? मैं कहता हूँ शाइस्ता कमरा साफ कर सकती थी. यस, अभी बताएं. नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी ये बूढ़ी हो गई. गुड. अभी बताओ. पाँव- अब बेटा बताओ. शाइस्ता could clean room. Clean the room. Interrogative, could शाइस्ता. Could शाइस्ता clean the room? Negative, शाइस्ता could not. शाइस्ता could not. Interrogative, could शाइस्ता not. Could शाइस्ता not clean the room? Could शाइस्ता not clean the room. Very good बेटा. बेटा एक जुमले आप लोग ने बनाना है. ये एक जुमला, ये आप लोग का असाइनमेंट है. ठीक है, ये काम साफ करना है. अगर गंदा किया हुआ तो ये देखिए मार्कर यू आ जाएगा. ये काम एक बार उतार दो, फिर छुट्टी करना है. मैंने कन्वर्सेशन करना. आप अहमद दैट्स ऑल बेटा. ये वीडियो आप वो कर लें, ओके कर लें.